हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के भी तीन पार्ट है। एक है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग एंड थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम लोग अ बेकर फ्रॉम गोवा को लेके आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर से हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट कंटेंट है उस पर हम लोग एक बार फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेकंड एंड फिर थर्ड चैप्टर करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। दिस लेसन इज अ पेन portrait of a traditional Goan village baker that still has an important place in his vicinity. Elders in Goa are the nostalgic about good old Portuguese days, about the Portuguese and their famous loaves of bread. Goa was the Portuguese colony. After independence, Goa became the part of India. Goa has a distinct effect of the Portuguese and the Anglo-Indian culture. Christianity is one of the main religion in Goa. The baker made his the musical entry on the scene with the zhang sound of his specially made bamboo stick. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with a good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Okay, I'm just setting again in this frame. Just a minute. Just setting these all things in a frame. Okay, fine. Till here we have done till bamboo. Okay, now we are starting from here. During the narrator's childhood in Goa, the baker used to his friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. Once when he set out the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling third of his bamboo woke the narrator up from sleep, and he ran to meet and greet him. Baking was an integral part or part of a gone life. The marriage gifts were the meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just a party of the feast loses its charm without bread. The lady of the house must prepare the sandwiches on the occasion of her daughter engagement. Cakes and the bolinas are the must for the Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The baker wore a dress known as the kabai. It was the peculiar dress. It consisted of a single piece frock down to the knees. Later, in the childhood of the author, the dress of the bakers changed. Now he wrote. Now he wore a shirt and the trousers shorter than the full length of the long than half pants. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on the sum wall in pencil. Baking was the indeed a profit profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony on this. Thus, we have finished this chapter also. This then we are doing now in next video we will do next point. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया के तीन पार्ट है। एक है द बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुर्ग के बारे में और फिर टी फ्रॉम आसाम। तो उसके बाद हम लोग फिर टी फ्रॉम आसाम की तरफ फर्दरली आगे बढ़ते जाएंगे। कभी कभी जैसे मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ या कोई वर्ड बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल या प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ना मैच कर रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छे से उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, अगर आप देखते जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा कि एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। इस शॉर्ट टाइम में हमें क्विक रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, अभी जितना कम समय है हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग
जो भी टाइम है उसको हमें यूज करना है अच्छे से, और इसके रिवीजन के साथ ही जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे किया जा सके। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे अच्छे से अच्छा स्कोर कर किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसमें आपका इतना अच्छा मार्क्स नहीं बन पा रहा है, इतना अच्छा परसेंटेज नहीं बन पा रहा है, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो, और इसके इतने मार्क्स अच्छे आ सकते हैं कि जिससे कि आपका परसेंटेज हाई हो सकता है। तो इसीलिए इंग्लिश पे काफ़ी अच्छे से अपना फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी, और अगर आप नेक्स्ट अगर आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे कॉलेज में जा रहे हो या उससे कॉलेज के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ पे इंग्लिश का वेटेज हमेशा से ही है और हमेशा से ही ये अब आगे भी रहता जाएगा। तो इसीलिए आपको इंग्लिश पे अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा कमांड कर लेना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा कि अभी जो फ़िलहाल टाइम बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपको अच्छे से क्विक रिवीजन करना चाहिए शॉर्ट कंटेंट के साथ में, और अपने उन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो, चाहे मिक्स चैप्टर से रिलेटेड हो। तो इसी सीरीज़ में आज हमने बेकर फ्रॉम गोवा फिनिश कर लिया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुर्ग चैप्टर के साथ में, और कुर्ग के बाद फिर हम लोग टी फ्रॉम आसाम कर देता। तो आप लोग की रिवीजन रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।